अंडरस्टैंडिंग में तर्क वगैरह की ज़रूरत नहीं। अंडरस्टैंडिंग तब जब पलक झपकते मामला ही साफ हो गया, विचार करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तब जानना कि जाना, तब बोध है। तो जो लॉजिक होता है ये हमें दूर रखते हैं सब, मतलब लॉजिक तो आदमी का खोपड़ा, इस चीज़ के पीछे ये कारण, इसके पीछे ये कारण, ये कारण इस कारण से ऊपर, उसमें तुम्हारी वैल्यूज़ शामिल हैं, उसमें कारणों का तुम्हारा अनुमान शामिल है, 50 चीज़ें शामिल हैं। तो बुद्धि की चक्री चल रही है, इसको तुम कहते हो तर्क। अब बुद्धि की चक्री रुक गई क्योंकि अब पीसने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसको कहते हैं बोध। भाई तुम बाज़ार में चल रहे हो और वहाँ बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारे दृश्य हैं, तुम उन्हें समझना नहीं चाहोगे, तुम्हारा संबंध है उनसे। समझना तो मतलब उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर थॉट्स लाना और फिर कंक्लूजन निकालना। जब समझ जाते हो किसी चीज़ को तो थॉट्स बचते हैं उसके बारे में। उसके बाद नहीं बचते। हाँ, तो उससे समझने के लिए अगर विचार की आवश्यकता हो तो विचार भी कर लो, बिना विचार के ही जान जाओ तो बिना विचार के ही भला। तो कितना समझना ज़रूरी होता है? आंशिक नहीं होती समझ, या तो समझे या नहीं समझे। शब्दों में अर्थ नहीं निकाल रहे, भावों में तो अर्थ निकाल ही रहे हो। तुमसे किसने कह दिया कि कोई भी ध्वनि जो तुम्हारे कान में पड़ती है अर्थहीन होती है? तुम हर चीज़ का अर्थ निकालते हो। बल्कि जब संगीत शब्दों में तुम्हारे पास आता है तो फिर भी कम घातक होता है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि शब्द क्या कह रहे हैं। वही संगीत जब धुन में तुम्हारे पास आता है तो ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे भीतर भाव का संचार हो जाएगा। कितनी ही धुनें हैं जिनको तुम सुनोगे तो तुम लड़ने को आतुर हो जाओगे, कितनी ही तुम सुनोगे तो तुम रोने को हो जाओगे, कितनी ही जिनको तुम सुनोगे तो तुम में कामना उठने लगेगी। ये सब भाव ही तो हैं बिना शब्द के। और तुम दोष भी नहीं दे सकते, तुम ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है। शब्दों में तुमसे कुछ कहा नहीं गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर संवेगों का तो संचार हो ही गया ना। तो इसमें मेडिटेशन जैसा कुछ नहीं है। Subliminals they're called. If you want to get some peace, there is one kind of music. If you want to get love, one kind of music. They even went to an extent and say that if you want a message from a loved person, listen to this music 9 hours. So actually when you do that, the thing actually happens. So music has the power to manifest something, emotions and material also. It's a sensual input. It is arousing a certain feeling that was already within you. That's all. To do that or What do you think? It's like fooling oneself. Don't you know of military music? Play military music and all the young men will feel like getting up and picking the swords and guns and fighting. All this is just being done just to manipulate the mind.
excites the mind, we should be away from it. Obviously. Wherever it is silent, we should be. And this is not merely excitement of mind, this is deceptive excitement of mind. It is twice as dangerous. You are not merely exciting the mind, you are also exciting the mind in a subliminal way. The mind won't even come to know, the poor thing, won't even come to know what has been done with it. If you go to someone and tell him, fight, 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 he at least knows that he is being provoked to fight. But instead, if you play him provocative music and he gets ready to fight, then he has been cheated. He won't even know that he has been aroused without his knowledge or consent. Contrary, sir, there is some music which also heals you. Physical diseases also can be healed. That music has to come from no one less than a rishi. It cannot come from a marketeer. It is coming from the saint. Saints are unlikely to. The Upanishads are poems. If you want to heal the mind, read them. Don't go for this commercial music. The Upanishads are poems. The Gita is a Geet. Listen to the Gita of Krishna, listen to the Gita of Ashtavakra. The Quran too is a song. Listen to them, not to these gimmicks. Osho says silence is the highest form of music or sound. Is there a way I can just listen to silence and enjoy it? Listening is silence. You cannot listen to silence, but if you are listening, that is silence. Silence is not an object that you can listen to. You can listen to this, that, this. Is silence something? Is silence a thing that you can listen to? No. Silence is a quality in which listening takes place. So if you are listening right now, then you are silent. Just as in light, you see a lot of things, but you cannot look at light, can you? In light, you look at everything. Similarly, in silence, you listen to everything. But you cannot listen to silence, just as you cannot look at light. Probably similar to truth, like you can't see the truth. But Silence is the backdrop for the vast pool in which everything is happening. But if you are connected to all the things that are happening, then you will lose touch with the foundation on which everything is happening. Not only that, you will get attached to the things that are happening, and therefore you will not be able to know the real nature of those things. The moment you get attached to something, you cannot know it. But if you are in silence, then you can see everything, then you can listen to everything, and then you can know everything. Silence is the fundamental nature of mind. Silence is not an object. Silence is not merely the absence of noise. Noise, noiselessness, all these things pertain to objects. That is not silence. लिसनिंग एवरीथिंग मतलब इससे क्या लाइक जनरली जब हम
चलते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं तो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हमारे एक्टिव रहते हैं, बट मेजर जो हमारा फोकस होता है वो आई से होता है, हम जो देखते हैं वो होता है, बट लाइक कानों से ज़्यादा हम वो नहीं होते, लाइक अनटिल अनलेस वो बात सर्वाइवल पे नहीं आती, लाइक कुछ चीज़ होती है, लाइक धमाका होगा तो हमें पता चल जाएगा, बट कोई ऐसी आवाज़ या फिर ऐसे कोई चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा, सिर्फ आँख पे होता है। तो लिसनिंग एवरीथिंग अगर लाइक, और दिमाग में थॉट्स तो चलते रहेंगे, तो अगर थॉट्स में तो ऐसा, अगर थॉट को एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब उसको देखा नहीं, तब तक वो चलता रहेगा। और अगर हमने कुछ देखना चाहा, लाइक आंखों से कुछ देखा थॉट्स को छोड़ के, तो उसके ऊपर थॉट आ जाएगा। ऐसे अगर हम कुछ म्यूज़िक सुने और म्यूज़िक में सिर्फ जो बीट्स हैं उसको देखें, जैसे लिसनिंग एवरीथिंग, तो उस बीट्स को देखें तो उससे भाव, मतलब इमोशन क्रिएट होगा ही होगा। अरे बाबा, लिसनिंग एवरीथिंग का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ सुनो, हियरिंग एवरीथिंग नहीं बोला है मैंने, लिसनिंग एवरीथिंग बोला है। मैं शारीरिक क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि प्रकाश के होने से तुम सब कुछ देख पाते हो, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि प्रकाश होगा तो यहाँ जितनी चीज़ें होंगी तुम सबको देखोगे। देखी क्या? यहीं जितनी चीज़ें सब देखी क्या? तो जब मैं सब चीज़ देखने की बात नहीं कर रहा तो सब चीज़ सुनने की बात भी क्यों करूँगा? लिसनिंग बोला है। लिसनिंग का मतलब है कि समझ जाना, जैसे सीइंग का मतलब है जान जाना। जब कोई तुमसे कुछ बात कहता है और तुम कहते हो आई सी, तो इसका क्या मतलब हुआ? तुमने देख लिया। इसका क्या अर्थ होता है? मैं समझ गया। हाँ, तो उसी अर्थ में लिसनिंग भी बोला है कि तुम समझ गए। नॉर्मली जो म्यूज़िक इनपुट हो रहा था हमारे सेंसरी ऑर्गन से, कान सुन रहे थे, और जब लाइक लिसनिंग होगा तो म्यूज़िक तो तब भी इनपुट होगा, तो उस वक्त भाव नहीं होंगे क्या? उस वक्त तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे मन के साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पर उस भाव पे ध्यान नहीं जाएगा फिर। भाव है और भाव उत्पाद है एक बाहरी प्रभाव का। प्रभाव आता है, भाव उठता है, तुम ये सब जान जाओगे। प्रभाव आता है, उससे भाव उठ जाता है, ये जान जाओगे। अच्छा, ऐसा हो रहा है, ठीक। कान पर बीट पड़ती है और भीतर से दिल और तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। ये सब दिख जाएगा, तुम थोड़े तटस्थ हो जाओगे। और बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा ये चल रहा है। अभी अभी तो देखा, पकड़ में आ गया मामला।